ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग यू? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, find the find the equivalent resistance of a triangular bipyramid between the points A and C and D and E. अब ध्यान देना सब लोग, everyone just pay attention. A and C, A and C मतलब दो ends कहाँ पर आएंगे? A and C पर. Yes, sir. If I see this is one end that is A and this is one end that is C, and this is a 3D triangular bipyramid. Can I use perpendicular symmetry? Hello, Yes, sir. क्या मैं False DBE से, resistance. बेटा DBE से इसको काट दूंगा Yeah, false resistors. Sir. ऐसे? क्या भाई सही है ना? हेलो, तो कैन आई से दिस पोटेंशियल and this potential are the same. So which are the two false resistors? Can I say ये false resistor है और ये दूसरा false resistor है? So can I make the new circuit across? This will be ऐसे 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 ऐसे, like this and like this, and this is across A and C. So there's one behind also. There is no behind. This is a dotted line. They are telling you it is behind. I don't think so. It's a dotted line. Correct? So that will be the base of the bipyramid. But they are telling you what? I don't think so. है क्या? The triangular bipyramid. सर हाँ, एबीसी का ट्रायंगल के लिए तो होना ही चाहिए ना. A B C triangle. Correct. He is correct. ठीक है. तो अभी this is R, 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 and this is R. Can I say these two will become 2R? Hello? Yes, sir. 2R, 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 and this is R. So can you start? Like my internet got lost. I couldn't continue. Can you? एक मिनट स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला सम. यू कैन सी द वीडियो 2 मिनट्स का. Thank you, वीडियो sir. कोई टेंशन नहीं है. ओके, लिसन ओवर. आई एम Okay, sir. जस्ट अच्छा, ये तीनों किसमें है? सब पैरेलल में ही है. हेलो, कैन आई से 2R is going to become 2R by 3 parallel with R. Hello, so the answer is going to become what? 2R by 3 into R upon 2R by 3 plus R will become 2R square by 3, and this will become 5R by 3. This and this and this and this become 2R by 5. I hope you all are getting this thing. Hello? Yes? यस सर. Yes, sir. Okay. तो और आगे करते हैं. Now I'll rub this, I'll rub this because I want to draw another figure now. ठीक है everyone, you can take a screenshot or something. I'll rub this. अब आपको कहाँ मांगता है? Yes sir. Between D E. So the two ends will be D and E. I'm using the same perpendicular symmetry. Can I say I will cut the wire? I will cut this like this. You'll pass a knife through this way, na beta? Hello? Can I say this potential, and this potential are the same? so it has to be in the perpendicular plane. Yeah, it has to be the perpendicular plane, no? When you cut it. It is symmetrical about that line, na beta? Hello? So If you imagine, it is symmetrical about that line.
So AC also will have X and X only. No? Same potential ना? The backside resistance. Yeah, same potential Ah, only. okay. Sir. Okay, so what has to be done? So AB, BC, and AC will be false resistance. Yeah, these all guys will go. पीछे वाला भी चला जाएगा. So yes, this will become ऐसे, ऐसे, and ऐसे. क्या हो गया? What is the resultant answer? So 2R/3. Finished. 2R/3. Hello? What, man? Please. Yes, R parallel to R. Yeah. So it is easy only if you use symmetrical method. Okay. I hope everyone has understood this thing. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Go to the next slide. Question number 2 also I am doing, so practicing for symmetry. There are 9 wires, each of a resistor are making a prism as shown on the figure. Find the equivalent resistance across AD. So imagine this to be a pastry. Yes. AD के across I need to find. One second, just one second. Just wait. हाँ ताहिर. हाँ. Okay. Okay. Mm-hmm. कौन अपने बायो वाले वेंकटेश सर? वेंकटेश सर की डेथ हो गई है. ठीक है, चल मैं फोन करता हूँ. तू एक काम कर, तू भी ध्यान रख और टेंशन मत ले. मैं चाहिए तो देख, मेरे को मैसेज कर दे, मेरे को मैसेज कर देना. आई विल कैंसिल आउट द लेक्चर. ठीक है, टेंशन मत ले. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. You must have heard about वेंकटेश सर. हेलो. वेंकटेश सर का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. I've heard. Because he died बेटा today right now. ठीक है. I need to tell everyone. ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम लोग. क्या करना है इसका? हेलो. इसका क्या कंटिन्यू कैसे करना है? एडी के अक्रॉस क्या करेंगे? हेलो. यार सब चुप हो गए. Can we? So, We can't do. perpendicular symmetry. अरे सीधा कट करो ना उसको. हाँ. कैन आई कट इट थ्रू दिस वे? इसको एक पेस्ट्री इमेजिन करो, ऐसे काटो. बोलो. Yes, sir. तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए ना बेटा. हाँ. ये उड़ जाएगा. हेलो. बोलो. This is which one? Perpendicular symmetry only. परपेंडिकुलर सिमेट्री होगी ना. लाइन एडी जो है उससे परपेंडिकुलर आई एम मूविंग द नाइफ ना बेटा. हेलो. Yes, So sir. symmetrically, right? हाँ, परपेंडिकुलर हाँ. सिमेट्री. Okay. अब क्या करना है? अब फिर से डायग्राम बनाते हैं. ये ऐसे है. ओके. ये जाएगा ऐसे. So only two एक triangles will be there. करेक्ट है. Yes, sir. और इसके अक्रॉस निकालना है हमको. बेटा इजी है, कुछ नहीं है यार, थोड़ा प्रैक्टिस करो. चलो नीचे आएगा R parallel to R. देखो ये 2R हो गया ऊपर वाला और ये R है, तो ये हो जाएगा 2R/3 Yes, ऊपर sir. का. हाँ. हेलो. this guy will become 2R/3. ये क्या हो गया? R and R.
हाँ, और नीचे भी 2r/3 होंगे। ये भी हो गया 2r/3 और ये दोनों एंड्स बच गए। अब बताओ क्या करेंगे? 2r/3 प्लस 2r। हेलो मैन यार, ऐसे मत करो। हाँ, कम ऑन, दिस विल बिकम 8r/3 2r/3 और नीचे के तीनों किस में आ गए? सीरीज। सीरीज में। व्हाट इज 2r/3 प्लस 2r? 8r/3 8r/3। 8r/3। अब मुझे बताओ ये इसका कितना टाइम है? r/4. The upper one is r/4. r/4, so it will become 8r/3/5 ना? Yes, sir. Sir, I am not understanding anything. बोलो। Yes, sir. Understood. Understood ना? So no big deal, it is very simple. Just use। इसके लिए 10 सिमेट्री मत याद करो, आप लोग सिर्फ एक सिमेट्री से ही काम चला सकते हो। इंजीनियरिंग में आप बाकी थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ऐसे थ्योरम, सब थ्योरम पढ़ते रहेंगे। आप एक थ्योरम से काम चला लो इधर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर और दूसरा वाला कौन सा आंसर है? ए बी। AB. तो आई विल रब दिस नाउ सो दैट क्लैरिटी आएगा। ए बी। अच्छा, ए बी कहाँ है? Straight line. अरे बराबर है क्या? yes sir. Yes, sir. अब यहाँ पर सिमेट्री का कुछ काम नहीं है, सिमेट्री है ही नहीं हो। हेलो, अब देखो, अब देखो, इसको काटने की कोशिश करो, क्या सिमेट्री? कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, बिकॉज देयर आर नो नोड्स, देयर आर नो जंक्शंस व्हेन यू कट इट। हेलो Yes, sir. भाई, आप अगर काटना चाहेंगे, कोई दूसरा तरीका है? आप बताओ। The path So we current. cannot cut it through AD or BCF. नो नो नो, यू हैव टू परपेंडिकुलर सिमेट्री के लिए आपको इधर से काटना पड़ेगा। So it should be center only, no matter where it is perpendicular. So, हाँ, when we cut it through ABFE, ए बी, FE, the rectangle, यस। so AN, ए बी एफ ई से कट कैसे किया था हमने? ए बी एफ ई से आप कैसे कट करेंगे? इज इट सिमेट्रिकल अबाउट दैट पॉइंट व्हेन यू कटिंग इट? But you have to divide this into two equal halves by cutting. That is the rule of symmetry. oh, भाई एक पेस्ट्री है, ओके, योर ब्रदर और सिस्टर विल टेल यू आई वांट हाफ, तो आपको या तो परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाना पड़ेगा या तो पैरेलल सिमेट्री लगाना पड़ेगा। हेलो, yes, sir, yes. तो इससे तो कट ही नहीं करेंगे, और ये अगर कट भी कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा? कोई जंक्शन वंक्शन थोड़ी मिल रहा है उधर। So AE and BF will not be perpendicular to it. AE and BF. BF, no you cannot cut it because I want to cut it through this line ना बेटा। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, Okay, sir. okay, so I'll use another method as So I you told can you pass this. voltage now. हाँ, I Current, tell current, you sorry. pass current Yeah. and the things will become very easy. Suppose So यहाँ से D मैंने will करंट, cancel out. एक मिनट, यहाँ से मैंने करंट पास किया, करंट ये तीन भाग में डिवाइड होगा। कैन आई से यहाँ पर एक करंट जाएगा, लेट दिस बी आई डैश करंट। कैन आई से यहाँ पर जो करंट जा रहा है आई, और यहाँ पर जो करंट जा रहा है आई, वो सेम फंक्शन है, बिकॉज देखो, So all three will be same, no? नो दिस विल नॉट बी द सेम। अरे ये हाँ, डायरेक्टली, no. ये Yeah, डायरेक्टली ए बी पे पहुंच रहा है, Yes, sir. ये पूरा रास्ता कवर करके जाएगा। लो, Yeah, sir. ओके, ये पूरा रास्ता कवर करके Can you जाएगा। repeat this current का part? यस 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 यस, ये इधर है, ये इधर है। कैन आई से करंट विल डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3। हेलो, Yes. अच्छा, ये करंट देखो, ए से कहाँ जाना है मुझे? ए से कहाँ जाना है? से B. बी पे जाना है। Maybe. तो ये वाला करंट तो डायरेक्ट पहुंच गया ना। Yeah, the resistances will be different. Understood. ओके, ये वाले करंट के बारे में क्या ख्याल है? ये वाला करंट जो है वो So it will AD पे और AE पे same voltage आ जाएगा. सेम वोल्टेज आएगा, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम रहेगा। Yes, sir. So that is a false. एक मिनट, वेट, ये तरीका सही है। अब आप एक काम करो, सुनो मेरी बात,
बैटरी को उल्टा करके फिर से करंट पास करो. Same will happen for CF. Yes, हाँ, sir. सेम विल हैपन फॉर CF. हाँ. बैटरी को उल्टा करके फिर से करंट पास करो. तो कैन आई से दीज आर फॉल्स? हु इज फॉल्स? E and CF. DE and CF. So can you explain? I didn't understand. I'll do it again. Don't worry about it. See, यहां पर हमने बैटरी लगाई, बराबर. Yes, sir. एक करंट ऐसे जाएगा. अच्छा, ये करंट तीनों का अलग ही रहेगा, ये करंट अलग ही रहेगा. ओके, यहां पर एक करंट है और यहां पर एक करंट है. दैट विल बी ऑफ द सेम वैल्यू. Yes, sir. So can I say this potential and this potential will be the same? अरे IR ना, IR Yes, sir. Yes, sir. drop and IR drop is the same. यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का वोल्टेज भी V. Yes or no? This will become a redundant resistor. हेलो, Yes, sir. ये चीज आप B के साथ करो, करंट उल्टा करो और B के साथ करो, क्या हो जाएगा? This and this will become redundant. Yes, sir. So now you draw the circuit again. ये R ऐसे. parallel, CR parallel. एक मिनट करते हैं. ये दोनों एंड्स, ये ऐसे और ये ऐसे. यस और नो बेटा? Yes, sir. ये साइड कितना आ गया? ये 3R आ गया और ये भी 3R आ गया. हेलो, हाँ. ये R, ये 3R और उसी के साथ में और एक 3R ना. हेलो, Yes, sir. you know how to calculate. This will become 3R by 2 parallel R, बराबर क्या? अरे वॉल्ट मैन प्लीज यार. Whatever resultant answer. Okay. Hello. CR by 5, sir. 3R by 5. Okay. आगे बढ़ते हैं. थर्ड वाला सम आप लोग कर सकते हो ना भाई? एक्स वाई पकड़ के करना है. हेलो One. यार, आई शुड डू. ठीक है, आई विल डू, नो प्रॉब्लम. चलो शुरू करते हैं. कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यार? कुछ गलती है क्या डायग्राम में? 5 एम्पियर करंट का बराबर है, ध्यान रखना. 2 एम्पियर, 4 एम्पियर. तो कोई बता सकता है इधर से कितना करंट आएगा? तो वो एरो नहीं दिया 5 ओम पे. इस पे हाँ ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग. पहले मुझे बताओ ये करंट कौन सा रहेगा? येलो वाला 12 volts का. एम्पियर ना. अरे मेरा बच्चा, लुक एट दिस जंक्शन, इनकमिंग इज आउटगोइंग. अरे यार, यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे अंदर आएगा कितना? 6 बराबर. बराबर नहीं है, रॉन्ग है. हेलो, Yes, sir, बराबर. ओके. अच्छा, यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है. इस जंक्शन को देखो, यहाँ से 6 जा रहा है, यहाँ से 5 जा रहा है, तो यहाँ से अंदर कितना जाएगा? 11 एम्पियर. 11. अरे इतना समझा गया, वरना सम ही नहीं कर पाएंगे आप लोग. हेलो, Sir. क्या आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. अभी आपको क्या मांगता है? पावर डेसिपेटेड इन 5 ओम रेजिस्टर. 5 ओम रेजिस्टर तो ये है. व्हाट इज द पावर डेसिपेशन इन द रेजिस्टर का फॉर्मूला? I स्क्वायर R. बराबर. I कितना है? 11 का स्क्वायर 121 into R. डन सर. व्हाट? हेलो, 605 वॉट. बोलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, फटाफट बताओ मुझे. चलो, P पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB. हाँ चलो आर्यन बेटा, उंगली लेकर जाओ आपका C से B तक. हाँ, यू कैन डू. हेलो, हाँ. क्या करना है? VC माइनस VB. चलो लेकर जाओ. EC VC प्लस 5 into 1 5 into 1 प्लस 12 plus 12 minus 12 minus 12 minus 3 minus 8 हाँ बस is equal to VB.
तो आपको क्या मिल जाएगा, VC माइनस VB, यहां से मिल जाएगा वोल्ट। ये सब टाइम पास है। हेलो, सी पॉइंट। चलो ये बताओ, विच बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड? 3 volts. अच्छा 3 वोल्ट। अच्छा, चार्जिंग ऑफ द बैटरी कब होता है? When कब? current करंट इधर से, When करंट इधर से। yes. both are getting बोथ आर गेटिंग चार्ज। देखो जरा, अरे 12 वोल्ट के बैटरी में भी करंट तो ऐसे ही आ रहा है ना। 11 ampere also. हेलो हेलो हेलो। yes सो बोथ आर चार्ज्ड। ओके, गेटिंग इट, गेटिंग इट। एंड कितना पावर खा रहा है वो? EI। yeah हेलो, yeah ई yes आया ना, sir. ये सब आना चाहिए। ई कितना है, 12 इंटू 5, ये 60 वोल्ट खा जाएगा। आई कैन से पावर एब्जॉर्बिंग है, पावर एब्जॉर्ब। Yeah. और दूसरे वाले में कितना रहेगा? 16 to 3 so 18 watts. 6 इंटू 3 दैट इज 80। तो इतना पावर वो खा जाएगा। हेलो, बोलो। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग यार। मतलब क्या है अभी यार करंट के अंदर, ये कर सकते हैं? ऑल द सम्स आई शुड डू, प्लीज। चलो शुरू करते हैं फोर्थ वाला, फिर फटाफट जंप करेंगे। अ 6 वोल्ट बैटरी of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB। अच्छा चलो लिखते जाते हैं फटाफट। E कितना है? 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ऑफ EMF, The EMF length of मतलब the दिस इज wire is E1। 100 centimeters. 10th wire. सॉरी, लेंथ है, लेंथ है। EMF कितना है? 4 वोल्ट। एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। इज जॉइंट इन द फिगर। द पोटेंशियल ऑफ B इज 0। पोटेंशियल ऑफ B इज 0 मतलब अगर ये 6 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट हुआ ना। बैटरी 6 वोल्ट का बैटरी लगाया ना यहाँ पर, तो ये तो 0 हुआ। वो तो सही कह रहा है। ओके, व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट A and C? व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट A and C? कुछ नहीं करना है, देखो मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, अपनी उंगली लेकर जाओ फ्रॉम A to C। A पे कैन आई से VA -4। अच्छा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज हैपनिंग एट नल पॉइंट। सो कैन आई से गैल्वानोमीटर के अंदर जो करंट है इज 0। अरे बोलो ना भाई, इज इक्वल टू VC। व्हाट इज VA का वैल्यू? 6 वोल्ट -4 वोल्ट इज इक्वल टू VC। तो VC इज गोना बिकम 2 वोल्ट। Did you understand this thing? You have to just take your finger from A to C. And I know that everything is happening, the reading is happening at null point. Null point matlab the current through the galvanometer which is connected over here is 0. अरे क्या पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा है क्या? हेलो, So D is the null point. D is obviously the null point, na? It is touching on the wire. So but it's not connected in the book. Let it not be connected. हाँ तो it is not connected then तो it is 0 only ना। That's all. Yes. मेरे यहाँ पर उसने बना दिया शायद ऐसे, तो ठीक है। I am considering it a null point. If it is not connected, then this has to become open circuit, ना? That's all. Yes. चलो B point. At which point D the wire AB and the potential is equal to potential at C। मतलब ये potential अगर 2 वोल्ट है तो ये potential भी कितना रहेगा? 2 वोल्ट। So can I say at that moment current through the galvanometer will become equal to what, sir? 0। 0. अब वो बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है at which point D, तो D point का लेंथ फाइंड करो। AD फाइंड करना है मुझे, AD फाइंड करना है, मतलब ये लेंथ ढूंढना है। हेलो, Yes. बोलो भाई, कैसे करेंगे? Can I say E1 is PGL1? Hello. Can I say 6 volt is corresponding to 100 centimeter? There is potential gradient happening na throughout the wire. Yeah. Sir, you don't know anything, sir. ये बराबर बात है क्या नहीं भाई? ओके, कोई बता सकता है यहां से यहां तक वायर में ड्रॉप कितना हुआ? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। 2 वोल्ट नहीं लिखना, 2 वोल्ट रॉन्ग है, वो उसका पोटेंशियल है वो पॉइंट का। ड्रॉप कितना हुआ है? 4 वोल्ट का। तो 4 वोल्ट में कितना वायर का लेंथ रहेगा? हेलो, क्या हो रहा है? मैं सही कर रहा हूँ, रॉन्ग हो गया? तो कितना हो गया ये L1?
400 by 6, 2 by 3, 66.67. Hello. Yes, sir. C. If the points C and D are connected by a wire, what will be the current through it? Time pass. Ig will become equal to 0 because which point is that? Null point, because potential दोनों same है ना यहाँ पर और D point का. इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है. Hello. Yes, na? Yeah. No problem with that. D. If 4 volt battery is replaced by 7.5 volt battery, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा. Can I say ड्राइवर सेल हमेशा बड़ा होना चाहिए? ड्राइवर सेल है ना मेरा बच्चा. हेलो. Yes, sir. कुछ नहीं होगा. नल पॉइंट मिलेगा नहीं. नल पॉइंट कैसे नहीं मिलेगा? आप एक काम करो, यू टेक योर फिंगर फ्रॉम A to C. Can I say VA minus 7.5 is equal to VC, but VA कितना है? 6 वोल्ट है. VC कितना आ गया? Negative. minus 1.5 volt, and minus Which is 1.5 not volt possible इधर आएगा, only. which is not possible in the wire. Hello, this is not possible only. I had done this kind of sum before also. Hello, yes or no? So, Hmm. so this galvanometer sums come now in that what they normally ask, like, because I get a lot confused in this. What all they ask, मतलब they can ask you anything, beta. मतलब what all they ask, It's like sometimes I get confused which formula to use here. वो प्रैक्टिस से आएगा. प्रैक्टिस से आएगा, और कुछ नहीं कर सकते. आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो. ओके, जो भी देखो, पूरा करंट करने की जरूरत नहीं है. जो भी आपके वीक पॉइंट्स है ना, उसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो. You will get it. Potentiometer comes only. ओके, पोटेंशियोमीटर के जो स्टेप्स है ना, आपको स्टेप्स फॉलो करना है. आप वो शंट की बात कर रहे हो ना, शंट एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर. In that you get confused. No, sir, this only. Like when to use that even plus assisting, opposing, then that component to dividend वाला है ना, वो कभी use करने का. ठीक है, वो आएगा तो हम लोग देखते हैं. ओके, अभी फिलहाल तो नहीं है. Componendo dividendo is when two batteries are connected over here. समझ में आ रहा है? When they are in same fashion, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? And when two batteries will be in opposite fashion, तो बेटा आप थियरी लेक्चर्स देखो बराबर. And so if they are in parallel, then पैरेलल में नहीं कर सकते, कोई भी केस हमने किया नहीं है पैरेलल के लिए. Then you have to calculate the E net, E1 upon R1 plus E2 upon R2 वाला. Okay. We'll you want to do the fifth question? I'll do it. चलो शुरू करते हैं फिफ्थ वाला. या बेटा. So potentiometer में if the driver cell and the E2 they are in different Fashion. one is plus different fashion. And it will not work. It will not work. If you apply Kirchhoff's law and see ना, you apply Kirchhoff's law and see, जो point आएगा ना, जो C हमने कैलकुलेट किया ना अभी, Yes, sir. वो नहीं आएगा, वो माइनस में चला जाएगा. Okay, sir. ओके, तो वो काम नहीं करेगा. आपको कुछ भी आ जाए तो आप Kirchhoff's law लगाओ, आपको पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मिलेगा. एंड दैट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट शुड लाई अलोंग द वायर. द वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना. वायर पे हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. नेगेटिव पोटेंशियल तो उस तरफ चला जाएगा जीरो के. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम, अजीब डायग्राम है. अ थिन यूनिफॉर्म वायर AB. अच्छा, AB किधर है? ये AB है. ये दिख रहा है क्या? हेलो, वायर बनाना पड़ेगा. AB वायर. अच्छा, B से कौन कनेक्टेड है? जरा देखो. X. अच्छा, X से कौन कनेक्टेड है? 12. एंड फिर दैट पॉइंट इज कनेक्टेड थ्रू अ पॉइंट A ना. मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? बड़ी देखो. Yes, sir. तो ये B है. B के बाद में ये कौन सी पॉइंट आएगी? C पॉइंट आएगी. C के बाद में ये D आएगी और D के बाद में सीधा ये आएगा. यस और नो? Yes. हेलो हेलो हेलो. यस. तो ये चीज है. थिन वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and unknown resistance X of resistance 12 ohms and a resistance of 12 ohms are connected on the thick copper strip.
हमने उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया. द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर स्लाइडिंग जॉकी आर कनेक्टेड टू इट, आर अवेलेबल. Connections are made to measure the unknown resistance X using principle of Wheatstone network, Wheatstone bridge. Are there positive and negative terminal on the galvanometer? Obviously no, because galvanometer is calculated at null point. तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के पास कुछ नहीं होता है. गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पे लगाते हैं ना बेटा हम लोग. हेलो, Yes. there is no positive and negative terminal of the galvanometer. Copy the figure in your answer book and show that the battery and the galvanometer. अच्छा, बैटरी कहाँ लगा है? बैटरी कहाँ लगा? हाँ, मगर कैसे लगता है? हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम था ना बेटा, ओरिजिनल डायग्राम जो हमारे थियरी में पढ़ाया गया था, वो कैसे था? यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पर याद है नोन रेजिस्टेंस होता था. हेलो, याद है ऐसे था. ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, याद है ये L1, ये Yes. L2. और बैटरी कैसे लगता था? ऐसे. इधर रियोस्टैट, रियोस्टैट का ऐसे कुछ टर्मिनल था. बराबर है. Always remember one thing, the positive terminal of the battery has to be connected to X. याद है positive was connected to point A and the negative terminal connected to a galvanometer through a jockey which is untouched. ऐसे कुछ बताया रहेगा मैंने यार. तो याद रखना ये चीज के unknown resistance के पास positive terminal होना मांगता है. तो how will the battery be connected? ऐसे. He will get Minus. He will be connected to this and this. हेलो, बोलो भाई. yes, sir. ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग पार्ट था. ओके, आप ऐसे बना देंगे और रॉन्ग हो जाएगा. ये हो गया कंप्लीट. अच्छा ठीक है, ये तो हो चुका. कॉपी द फिगर, आंसर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डन. आफ्टर अप्रोप्रिएट कनेक्शंस आर मेड, इट इज फाउंड दैट नो डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द स्लाइडिंग जॉकी टचेस द वायर 60 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए. तो यहाँ से 60, तो यहाँ से कितना? 40. कैन आई से लेफ्ट अपॉन राइट? लेफ्ट अपॉन राइट मतलब 12 अपॉन x इज व्हाट सर? 60/40. कितना आ गया आंसर x का? 8. बोलो. 8. This is the answer which you calculated. Hello. Yes, sir. अब आते हैं एट सम पे. ये वाला किरचॉफ लॉ ही है. ये वाला किरचॉफ लॉ ही हम लोग 8 वाला सम करते हैं, विच इज अगेन किरचॉफ लॉ ओनली. 3 सर्किट के साथ है. देखते हैं हम लोग. चलो मुझे एक बात बताओ, यहां पर करंट कितना फ्लो होगा इस जंक्शन पे? इनकमिंग इज आउटगोइंग. हेलो यार बताओ ना Yes, प्लीज. sir. कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 जा रहा है, 3 जा मतलब 1 आना चाहिए. Yes, sir. क्या हो रहा है मैम? अंडरस्टूड और नॉट? इज द लास्ट थिंग, लास्ट लेवल. ओके. अच्छा, यहां से 3 आ रहा है और यहां से 5 आ रहा है, तो यहां से कितना जाएगा? बोलो. Done. अरे उस साइड से 3 आ रहा है, इस साइड से 5 आ रहा है ना. मुझे डायग्राम खराब नहीं करना है बेटा, पूरा खराब हो जाएगा डायग्राम. ये समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. अच्छा, और किधर है? और किधर है? 8 आ रहा है, 1 जा रहा है, तो यहां से कितना जाएगा? बोलो. Did you get it? Did you understand? Very good. क्या निकालना है हमको? The current in the 3 ohm resistor, the current in the unknown EMF E1 E2, सबके इक्वेशंस बनाना है और खत्म करना है. चलो एक काम करो. ओके, इधर लगाओ लूप, शुरू करो. चलो एनीवन. सब करंट वरंट सब दिया हुआ है, आपको खाली उंगली घुमाना है. So plus -3 into 8. एक मिनट. हाँ, एक मिनट. ऐसे जाते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं. शुरू करो. -4 into 3. -4 into 3 +4 into 3 ना. यू आर गोइंग उल्टा, तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो ना. हाँ. कैसे जा रहे हो? Yeah. I saw the diagram. +4 into 3 -E1. हेलो. Yeah. +8 into 3 इज इक्वल टू 0. कुछ गलती वलती होगी तो बताना मुझसे. हेलो.
यार सही है कि गलत है? हेलो, Yes. तो 4 3 are 12 माइनस E1 8 3 are 24, कितना हो गया E1? 36 मिल गया। अब उंगली इधर घुमाओ, ऐसे घुमाओ, चलो इधर से शुरू करो। माइनस 8 इंटू 3 प्लस E2 माइनस 6 5 30 E2, तो E2 यहां से मिलेगा, कितना मिलेगा भाई? 30 माइनस 8 3 24, नहीं प्लस 24, कितना हो गया? 54 वोल्ट्स। अरे व्हाट इज देयर यार, किरचॉफ लॉ है, करेक्ट है ना? अब एक काम करो, इधर घुमाओ उंगली, इधर से शुरू करो, क्या रहेगा? प्लस 2R माइनस E2 प्लस E1 इक्वल टू 0, प्लस 2R माइनस E2 कितना है? 54 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R का वैल्यू आपको ओम्स में दिखाई देगा। हेलो, कुछ बड़ी बात है ही नहीं, आंसर मिल गया और सब आंसर्स मिल गए हमको। अरे भाई यस और नो सर? Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, 7th वाले पे आता हूँ मैं। 7th वाला एक अच्छा वाला सम है, उसमें थोड़ी सी एक अच्छी अजीब चीज दी गई है। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है? इन अ सर्किट शोन इन द फिगर इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एट व्हाट वैल्यू ऑफ R, एट व्हाट वैल्यू ऑफ R the power generated in it will be maximum। तो भाई मैंने मैक्सिमम का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, क्या करना पड़ेगा? तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू R, उसके पहले इसका करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकाल, अच्छा ये 6 वोल्ट का बैटरी है। हेलो, Yes. तो यहां से मैं एक काम करता हूं, मैं करंट यहां पर पकड़ता हूं I1 प्लस I2, कुछ भी पकड़ सकते हो आप, I1 प्लस I2 पकड़ रहे हो यहाँ पर, यहाँ से जाएगा सपोज I1, यहाँ से पकड़ते हैं I1, यहाँ पर पकड़ते हैं I2, करेक्ट है क्या? हेलो, Yes. अरे यू कैन टेक एनी डैम थिंग मैन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, तो इक्वेशन बनाना है, चलो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा? Oh man, A B C Plus 10V. So 10 minus RI2. ओके एक मिनट बेटा, 10 माइनस I2 इंटू R माइनस 6 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0। हेलो, Yes, sir. फिर नीचे वाले में लगाना है तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ? माइनस 6I1 प्लस I2 I1 plus I2 माइनस 3I1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हेलो, yes sir. इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो आपको I2 का वैल्यू आएगा 6/R प्लस 2, ये आएगा। हेलो यार, इतना तो कर सकते हो ना आप लोग? हेलो, Yes sir. 6/R प्लस 2 आएगा। अच्छा व्हाट इज I2 इन? I2 इज इन R, I2 इज इन R। आई नीड पावर इनसाइड, पावर का फॉर्मूला क्या है? I square. I square R. I2 square R। मतलब can I say this will be 6 का square, that is 36 R plus 2 the whole square into R। Can I write this as 36 R plus 2 raised to minus 2 into R? But this power has to be क्या भाई? So can I do dP by dR? UV rule? अरे भाई yes or no? हेलो, Yeah. Yes, तो sir. इसका पहले वाले का डेरिवेटिव u ही पकड़ो ना, इसको u 36R plus 2 raised to minus 2. so minus 2 R plus 2 raised to minus 3। हेलो, ये इंटू R हो गया, प्लस क्या यार है, Plus प्लस R R plus 2 plus 2 raised to minus 2. minus 2 into 1, and this answer has to be equated to what? 0। Yes. So this will become what यार, क्या हो जाएगा देखो ना जरा, ये 36 तो 2R वैसे ही उड़ plus गया, 2 36 raised to 36 minus 2 common. ये हो गया 2R plus 2 raised to minus 3 into R is equal to
r plus 2 raised to minus 2 into 1 Yeah. बराबर. क्या मैं सही कर रहा हूँ यार? हेलो, can I Yes, write this sir. as 2 upon r plus 2 the whole cube into r will become 1 upon r plus 2 the whole square. Sir, 2r Square और ये तो cancel हो गया. r plus 2. 2r upon r plus 2 is 1. So 2r will become r plus 2. So r will become how many ohms? 2 ohms. तो अब ये r को उठाओ और इसमें डालो, because you don't need r, you need power maximum. अरे बोलो ना भाई. Will become 36 into 2 upon 2 plus 2, 4 का square 16, 2 8s are, so 36 by 8 watts will be the maximum power. हेलो हेलो, Yes, sir. यस और नो, सिंपल है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. गुड, ओके, टेंशन नहीं है, अभी सब चीज आपको आती है. यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट. अभी सब चीज इजी हो जाएगा. अभी खाली वी हैव टू गो विद द फ्लो. सब चीज आती है आपको. अब ये वाला सर्किट कुछ अजीब सा सर्किट दिख रहा है, बट एक्चुअली है बहुत इजी. कौन सा वाला नंबर है ये? 9 है ना? Yes, sir. Yeah. हाँ बेटा, मैं एक काम करता हूँ, पहला वाला मैं करूंगा, दूसरा वाला आप लोग ट्राई करना. इफ द स्विच एस इज ओपन, स्विच एस इज ओपन मतलब Open. बीच वाला ओपन हो गया. ये सर्किट कैसे हो गया? ये ओके, ये 2, ये क्या भाई? ये 15 है ना? Yeah. Yes, sir. एक मिनट, ये 2, ये 15, ये कौन? 20, 20 Beast. volts. ये 4, ये कौन? 6. खाली 6 वोल्ट है क्या? ओनली 6 Yes. वोल्ट. But there's a 2 ohm resistance also. उसके साथ में है क्या? कहाँ है? Yes, sir, in the book it's ये printed. है क्या बुक में? हाँ वही मैं कह रहा हूँ. 2 ohms और यहाँ पर 10 volts. 1 ohm and 10 volt. So it's 15 2. एक काम करता हूं मैं, सुनो मेरी बात. ये जो एमीटर A1 A2 है ना, एमीटर A1 A2 दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. उसको मैं खींच के ऐसे बाहर निकाल देता हूँ. चलेगा ना? व्हाट टाइम पास है क्या भाई? और Yes. ये जो रेजिस्टर है वो क्या है? A5N A6. A6. नहीं A4. A4. अच्छा, both of these ends are connected by a switch and the switch is open. बोलो भैया. अरे क्या हो रहा है यार? What sir, what are you doing sir? हेलो, yes or no? एंड यहाँ पर ये 3 है ना, एंड यहाँ पर ये 6 है. Have I drawn the correct circuit? Are you analyzing? हेलो, Yes, sir. अब मेरी बात सुनना, सब लोग इधर मेरी बात सुनना, प्लीज पे अटेंशन. तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है, ये नीचे वाला सर्किट है ना, इसका कुछ काम नहीं है बेटा. इसको रब कर दूं मैं? हेलो यार बोलो, सर्किट इतना ही काम का है ना? दूसरा पेन Yes, यूज sir. करेंगे क्या? दूसरा पेन यूज करेंगे आज? चलो देखते हैं, ब्लू यूज करते हैं. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ. आपको एक नई चीज सिखाता हूँ. लेट द करंट ओवर हियर बी I1. लेट इट बी, अज्यूम, let the current over here be I2. Hello, and let the current over here be I3. कुछ भी ले रहा हूं मैं, assumption, मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, आप टेंशन मत दो. हेलो, are you understanding? Yes, sir. अच्छा एक काम करो, मेरी बात सुनो. If I name this as ABC, Shaurya, are you there बेटा? Yes, sir. Turn your fingers from A to B to C to A. ABC है.
ए बी सी ए, आराम से। हाँ ओके बताओ प्लस बताओ बताओ। प्लस एकदम आराम से जाना, प्लस 15 -2 -2 क्या, -2 -2 I I1। बट वे रुको रुको रुको, क्या ना इसे दूसरे लूप में भी 2 में करंट आ रहा है? हेलो, yes अरे भाई I1 तो ऐसे जा रहा है, बट उसके सामने I2 ऐसे आ रहा है। opposite. तो कैन आई से उसको आपको +2 I2 भी लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में लेके। हेलो, यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? हेलो, यस और नो? क्योंकि मैंने Yes. इंडिविजुअल लूप करंट्स पकड़ा है यहाँ पर। ये आपको, ये तरीका आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा फिर से। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? yes sir मतलब Yes, sir. अलग अलग करंट आपने पकड़ लिया, फिर आप लोग वो दूसरे वाले को भी लेना पड़ेगा कंसिडरेशन में। ये मिल गया और फिर इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा चलो, हाँ अभी ध्यान से, सी बी डी क्या, बी सी डी ई, तो क्या हो गया, सी बी डी ई सी। कौन घुमाएगा? एकदम आराम से घुमाना है। ओके, बी टू डी में जा रहा हूं पहले, बी टू डी। कैन आई से बी नीचे वाला, बी टू डी यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, -1 I2, I2 तो I2 है ना ये लूप में, -10, -10 ध्यान से ध्यान से ध्यान से, -2 I2, -2 और I2 I3 का भी होगा. प्लस +2 2 I3। yes क्या भाई sir. मेरे साथ में Yes, हो? sir. Yes, sir. -6 आगे आगे आगे, -4 I2 -4 I2 +20, खत्म नहीं हुआ है, +20 -2 I2 +2 I1, yes or no? yes sir. Yes. -15 इज इक्वल टू 0। हाँ correct. क्या हो रहा है यार? हेलो, Yes, sir. मतलब कोई टाइम पास है, बाजू वाले का करंट ले लेना है आपको और कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। चलो, राजवीर विल टेल मी ईडी, क्या है इसका नाम, एफ देंगे। चलो EDFE, चलो शुरू हो जाओ, डी से शुरू करो, डी से। डी टू एफ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ. F2E भी कुछ नहीं है। Yes, sir. अच्छा, E Plus टू 6. डी +6, वेरी गुड, -2 -2 I3 I3 and +2 I2. इज इक्वल टू 0। कितने इक्वेशन बने, कितने अननोन है यार? I1 I2 I3, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अभी क्या सबको समझ आया है ये बात? और ये सबसे आसान चीज है, खाली आपको है ना बाजू वाले का ध्यान रखना है। so हेलो, हाँ बेटा, this method is possible because current flows in loops and it will not करंट, work. yes, current flows in closed loop, that's why। So, but if so, direction of I2 is different in CE and BD both. No, because that will, no, that will compensate ना, we are just going in closed loops ना बेटा, हृदय, we are going in closed loops। अभी वो कहाँ से भी कोई लूप में ऐसे जाए कि वैसे जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? we are just going in closed loop। so, but if we consider I2 based on BD traveling in ED, then it will No, minus. that will not flow only, it will flow in closed loop only। Only this branch will be I2 plus I3 or I2 minus I3, because ये जंक्शन है ना यहाँ पर। बाकी यहाँ पर तो I3 पकड़ा है ना आपने, ये I3 जा रहा है इधर। Okay, sir. हेलो, गेटिंग ना? Yes, sir. ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्विच मैंने बंद कर दिया, ये पूरा मैं रब नहीं करने वाला हूँ, मैं ये सब रब कर दूंगा। स्विच मैंने बंद कर दिया तो एक लूप नीचे भी आएगा। लो, जो बनाया था ना मैंने अभी, जो रब कर दिया था मैंने। Are you all getting it? No? Sir, there what to do? एक मिनट, आई एम टेलिंग यू बेटा, वेट ना, डोंट टेक सो मच टेंशन। Yes. हाँ, ये है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसे इधर से लूप आपने बंद कर दिया, करेक्ट है ना? Yes. कुछ नहीं करो, ऐसे बनाओ, I4 हो गया आंसर। चलो, 1 आता है ना पूरा?
अरे ये लूप में घुमाने नहीं आता है क्या? So what will we do? We do A something something F A again, no? So we have taken 2 ohms extra. 2 ohms extra. So in Where? the 6 volts, if you see in the diagram A5, No. वो मिस्टेक है यहाँ पे 2 ohms है. डायग्राम डीसी पांडे में वो है. टेक्स्ट बुक में है। हेलो, sir, ठीक है, यहाँ पर आपको चौथा इक्वेशन भी मिल जाएगा पूरा घुमाने से. सर देखो, वो घुमाने खाली आता है. बोला ना उसका लूप कौन सा लेने का। हाँ मैं बता देता हूँ, चलो शुरू करते हैं. ए बी डी एफ ए. राजू शुरू करते हैं यार, टाइम पास मत करो. ए टू बी कुछ नहीं, नहीं सर। बी टू डी माइनस आई नो I2 हाँ माइनस 1 I2. वेरी गुड. माइनस 1 I2 प्लस -10। प्लस I4 को गिनते नहीं हो, नीचे से उल्टा जा रहा है. हाँ हेलो, सॉरी यस सर। ओके -10 हेलो इज इक्वल टू 0. डन. क्या हो रहा है भैया? So I2 should be plus, no? I2 is minus ना, you are going this way ना, So but going this way. we are Your going finger in is the going. opposite direction of current, no, in the resistance. करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना. हाँ आपने आईफो का लूप के I2 वाला तो ऐसे जा रहा है ना। So but based on the I4 10 is volt going opposite. battery, I2 नहीं, will. अरे बेटा वो सब देखना ही नहीं है आपको. You are not taking any battery into consideration. That mathematics will give you the answer. हृदय, Okay. are you understanding? So in आपने the start, सिर्फ assume किया, आपने so सिर्फ we सब assume fix किया. direction of current in any one direction. when we एनी start. डायरेक्शन कुछ भी लो, आप Okay, इसको sir. ऐसे ले लो, आप इसको ऐसे पकड़ो, आप इसको ऐसे पकड़ो, आप इसको ऐसे पकड़ो, चलो Okay, कुछ sir. भी ले लो. आपको मैथमेटिक्स सही आंसर, जैसे हम काइनेमैटिक्स में लेते थे. अरे वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन उधर है, आपको टेंशन लेना नहीं है. ओके, आपको वो आंसर दे देगा अपने आप. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस होल थिंग. ओके, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, आ जाएगा. चलो भाई, नेक्स्ट आई विल बी डूइंग 2-3 सम्स मोर ओनली. 2 सम्स मोर. चलो शुरू करते हैं. 11th वाले पे आते हैं. ओके, ध्यान देना. A circuit shown in the figure has resistance 20 ohms and 30 ohms. At what value of Rx? Rx का value आपको मांगता है. Will the thermal power generated be independent of the variations of the resistance? The voltage between point A and B is supposed to be constant. मतलब इधर का जो voltage है that is supposed to be constant. अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? Rx और 30. यार 30 into Rx upon 30 plus Rx. हेलो ये क्या हो गया? 20. ये हो गया बैटरी वोल्टेज का. हेलो, यस सर। अच्छा, व्हाट थर्मल पावर अक्रॉस whom चाहिए मुझे? थर्मल पावर अक्रॉस whom चाहिए मुझे? पढ़ो ना, पढ़ो नहीं यार, पढ़ो ना क्वेश्चन. At what value of Rx will the thermal power generated by it in it? हाँ, ए बी के अक्रॉस चाहिए. सॉरी, इसके अक्रॉस नहीं चाहिए, मैं रॉन्ग पढ़ रहा हूँ. Thermal power generated by the battery should be independent of it. नहीं यार, फिर से एक बार पढ़ते हैं. A circuit shown in the figure. फिर से एक बार करते हैं. Start from scratch only. A circuit shown in the figure has a resistance 20-30. At what value of Rx will the thermal power generated in it? RX. भाई, So in RX it, हाँ, in it will be practically independent of the small variations of resistance. हाँ चलो अभी That शुरू करते हैं. resistance लिखा है सर. हाँ that in it बोला है ना. हाँ, of that मतलब resistance. RX का variation doesn't depend. Rx 30 plus Rx, ये हो गया 20, ये हो गया बैटरी. बोलो भैया, yes or no? Sir, so what are they Can- asking in short? वो समझ में आएगा आपको. 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज. ओके, they want sir. that the power is constant and the derivative of the power should be 0. अब ये बात समझा आपको तो ठीक है, वरना हम लोग करते हैं. हेलो, ठीक है. आप मुझे बताइए इसका वोल्टेज कितना रहेगा? V1 वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला.
Yeah. voltage divider will become V V into into respective 20. value. No, सामने वाला into So voltage divider will be opposite वाला ना? no V is proportional to R. क्या बात कर रहे हो बेटा? हाँ yes sorry. I is That is inverse to R parallel. करते हैं ना. हाँ, Yes or no? yeah. भाई सही है कि wrong है? It's right. Can anyone tell me what is the power through? अच्छा यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी रहेगा? अरे पैरेलल में है यार, ऐसे मत करो तुम लोग है मेरे साथ में. तो कैन आई से व्हाट विल बी द पावर थ्रू Rx? V1 square by Rx. पावर का फॉर्मूला इज V square by R. मैं I square R के चक्कर में नहीं जा रहा हूं, मैं वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करके सीधा V square by R लगा हुआ. हेलो, यस और नो? तो पावर थ्रू Rx विल बी V square, मतलब ये पूरा का स्क्वायर. कितना हो गया? एक काम करो ना, इसका एलसीएम पकड़ो ना जरा. E1 को थोड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. V ये हो गया 30 Rx अपॉन 30 प्लस Rx, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 32 600 प्लस 600 20 plus Rx. 50 Rx. ये हो गया 30 Rx अपॉन 30 प्लस Rx. दिस एंड दिस विल कैंसिल. तो V1 क्या हो जाएगा? V into 30 Rx अपॉन 600 प्लस 50 Rx. So we अब can इधर डालो. cancel that 10 also. So power through Rx will become V square, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा V square into 900 Rx स्क्वायर अपॉन. So we can cancel the 10 also. एक मिनट 10 किधर है? 10 किधर है? 30 Rx and upon 600 plus 50. हाँ ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में. एक मिनट. 600 प्लस 50 Rx द होल स्क्वायर बराबर क्या? इनटू Rx. अरे टेल मी मैन, टेल मी. हेलो, यस और नो? ये Rx उड़ गया, तो पावर थ्रू Rx. अच्छा आप क्या कह रहे थे? 10 कैंसिल करना है, 100 ही कैंसिल हो जाएगा ना बाहर निकल के. तो ये हो जाएगा 9 V square Rx अपॉन 60 प्लस 5 Rx द होल स्क्वायर. यस और नो सर? Yes, sir. अच्छा दिस पावर ही वांट्स टू बी what sir? Constant means what? So it should be 90, no? 90 90 नहीं, 100 बाहर निकाला, नीचे से स्क्वायर बाहर निकलेगा ना बेटा, तो 100 उठ जाएगा ना हृदय. Yes sir, yes sir. So V1 भी cancel कर दो ना. V क्या और क्या So कैंसिल ऊपर V1 में 10 cancel कर देंगे तो इधर confusion हाँ that नहीं is होगा. also ठीक है, that is okay. Can I say dp by drx has to become 0? यार इससे आगे आप लोग लेकर जाओ, वही u अपॉन v रूल है. u अपॉन v रूल से अच्छा क्या करना है? इसको ऊपर ले लो. अरे व्हाट यार, अभी किया था. Yeah. 60 plus 5 देखो यार, Rx raised to minus 2. so that would be written as, क्या लिखा जाएगा भाई? 9v square V Rx अपॉन 60 plus 5 Rx raised to minus 2. हेलो, D by. yes or no? Yeah. अब इसका डेरिवेटिव ले लो और Rx का वैल्यू इस आंसर को किससे इक्वेट करो? 0 से, तो Rx का वैल्यू आपको दिखाई देगा. यस और नो सर? Yes sir. अभी क्वेश्चन का मतलब मालूम हो गया ना? इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशंस ऑफ x. मतलब क्या? इट विल रिमेन कांस्टेंट. हेलो, So you have to find minimum value, no? Or नहीं, Rx का वैल्यू ही ढूंढना है ना. okay. So even though Rx will change, its own power will be constant that way. Yeah, that means that Acha, okay. power with respect to Rx will not change. Okay, there is no gradient of power with respect to resistance. हाँ. टेक्निकली समझ में आया ना आप लोग को? अभी सब V चैंपियन हो गए constant हैं. है ना. हाँ, ओके. नो, Rx के वैल्यू से पावर चेंज नहीं होगा, पावर हाँ. चेंज नहीं होगा. Yes, sir. ओके, चलो भाई आगे. यस और नो सर? हेलो Yes, यार, sir. खत्म होने आएगी. So V1 will be constant now So, because 30 is not changing.
ये दोनों का पैरेलल वैल्यू चेंज होगा ना यार, क्या बात कर रहे हो? Rx अगर चेंज हुआ तो ये तो पैरेलल वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, ये वाला। क्या बात कर रहे हो आर्यन? सर V1 ये कैसे चेंज होगा सर? V1, अरे V1 डिपेंड्स ऑन व्हाट? V1 किस पे डिपेंड करता है? Rx, R पे। yes, हाँ। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो उसका पैरेलल वैल्यू चेंज हो जाएगा दोनों का। Yeah, I was seeing the first circuit जिसमें 20 और 30 है, that's all. ठीक है, Understood. चलो आगे। एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, चलो आगे। लास्ट सम ये कर लेना तुम लोग, फिर चलो फ्लो ही घुमाना है। 13 सम। अच्छा, 13 सम करने से पहले एक इंटीग्रेशन आपको याद करना है। ओके, एक इंटीग्रेशन आपको, दो इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। इट इज ऑन पेज नंबर 273 ऑफ योर डीसी पांडे। बहुत ज्यादा यूज होने का ये, हेलो, एडवांस में बहुत ज्यादा यूज होगा। आप लोग राम सर से कहिए, ये तो प्रूफ तो आता ही रहेगा, आप लोग सब चैंपियन हो। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस bx c dt 0 to t and 0 to x। इसका आंसर रहेगा x will be a upon b 1 minus e raised to minus bct। हेलो अभी एक घर पे जाके आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? हेलो, Yes, sir. अच्छा, दूसरा और एक इंटीग्रेशन ये यूज होगा, मतलब ये दो ही इंटीग्रेशन आपको पूरे फिजिक्स में, ये जो थर्ड बुक है उसमें याद करना पड़ेगा। सेकेंड इंटीग्रेशन इज dx अपॉन a minus bx, but it is from x naught to x c dt from 0 to t। x will be a upon b minus bracket a upon b minus x naught e raised to minus bct। ओके, हेलो, Yes. या तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन लगा के इंटीग्रेशन में चला जाएगा वो सम, तो इट विल बिकम वेरी लेंदी। ये चीज आपको ईएमआई में आएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट में आएगी, करंट में आएगी, कैपेसिटेंस में आएगी। इसलिए ओके, सर ने, डीसी पांडे सर ने, हाँ, A, B and C are constant value के variable? कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ तो दिया रहेगा वो सब। हाँ, अभी पता चलेगा आपको, 2 मिनट में पता चलेगा, 2 मिनट में पता चलेगा कि ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। आप लोग बार बार बेटा इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा, घर पे जाके प्रूफ करना, आप लोग को और क्लैरिटी आएगी। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंडक्टर हैज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस आर, ये आर है, एंड द हीट कैपेसिटी इसका सी है। रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर है, और हीट कैपेसिटी सी है। द मोमेंट एट t0 इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज। Find the time dependence of the conductor temperature T, assuming that thermal power is dissipated into surrounding is varying as। तो पावर जो दिया हुआ है, पावर की जगह Q दिया हुआ है, मगर वो पावर ही है which is K T minus T0। What is T? Temperature of its body, and what is T naught? Temperature of the surrounding। Hello, yeah, okay, P is what? is the temperature of the conductor at that instant। Hello, P. Power, no? P is power, ना, power dissipated। so कुछ Q print किया है, हाँ, Q print किया है बुक में। Q की जगह मैं लिखा क्या है यार, लिखा क्या है, पढ़ो ना यार। हाँ, yes, अभी क्यों लिखूंगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों yes, क्यों लिखा। हाँ, ओके, अच्छा, यहां पर दो चीजें हो रही है। जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना बेटा, कुछ सम में दम नहीं है, खाली वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक चीज हो रही है कि द कंडक्टर इज गेटिंग हीटेड अप, खुद गर्म हो रहा है, एंड सेकेंड इट इज रिलीजिंग हीट इन द सराउंडिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पावर। बराबर है क्या? हेलो, हेलो, अच्छा, आपको मालूम है स्कूल में सब लोग ने कैलोरीमेट्री किया है,
जब टेम्परेचर बढ़ता है, आइस का टेम्परेचर बढ़ता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। अरे व्हाट यार, Yes. प्लीज। हाँ और जब कोई चीज पिघलती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ml। अरे L इज लेटेंट हीट, C इज स्पेसिफिक हीट। याद दिलाऊं मैं? हैं? हाँ अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा, ये कौन है, ये कौन है? ये हीट। हीट एलिस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर मिलेगा। या Heat is a form of energy. Energy का derivative power. So can I say dq by dt is mc d theta by dt? बोलो। हेलो या हेलो। अच्छा, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मतलब mc होता है। आप हीट में पढ़ेंगे पूरे mc, इसको क्या बोलते हैं? मास। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। एंड पूरी चीज को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अरे यू विल डू इट इन यार थर्मोडायनेमिक्स एंड एवरीथिंग यार। तो ये बना पावर इज सी डी थीटा बाई डी टी। ये जब आपका थर्मल हीट हो जाएगा ना, थर्मल का सेक्शन, तो ये तो ऐसे ही रोज की चीज हो जाएगी। तो कहना इसे जो पावर, दो चीज पावर निकले, एक तो क्वेश्चन में दिया था, इट इज गिवन, और एक जो गर्म हो रहा है, सी डी थीटा बाई डी टी। हेलो, कैन आई से द टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी is सम going ऑफ in बोथ two ना things, is will become P1 plus P2। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यार। हेलो, Yes, sir. जितना दिया उतना लिया। क्या हो जाएगा ये? के टी माइनस टी जीरो प्लस सी डी थीटा बाई डी टी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। कैन यू टेल मी व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय द बैटरी? वी स्क्वायर बाय आर। Yes. नो, हेलो, वी दिया है, आर दिया है, सबको यूज तो करना ही पड़ेगा ना। सो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज वी स्क्वायर बाय आर विल बिकम के टी माइनस टी नॉट प्लस सी डी थीटा बाई डी टी। हेलो, यस और नो? यस सर अब कुछ नहीं, अब काम खत्म, अब इंटीग्रेशन शुरू। क्या करना है, किस चीज को साथ में लेना है? अच्छा, डी थीटा को मैं सर लिख वी सकता हूँ वांट डी, एक मिनट एक मिनट, क्या डी थीटा को मैं लिख सकता हूँ डी टी? बिकॉज टेम्परेचर टी है ना, थीटा नहीं है। या वी वांट दैट समझ गया ना? किसको साथ में लूं मैं, किसको साथ में लूं, किसको अलग कर दूं? सर वी वांट dt as separate हाँ, वी वांट, इधर देखो, इधर देखो, ये सब चीज देखो, ये सब चीज इसको देखो, dt so अलग v करना है। square by r हाँ minus k t minus t naught divided by हाँ, 3 एक एक मिनट एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय, जैसे आर्यन ने कहा, वी स्क्वायर बाय आर माइनस के टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू सी डी बड़ो टी अपॉन डी छोटो टी। हेलो यार, सही है सही है सही है सही है सही है, यस और नो? अब थोड़ा इसको और मैनिपुलेट करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, dt by c will become dt upon v square by r minus k t minus t naught integration this is from 0 to t and this is going from t naught to t. So why t naught to t? because starting में तो जब शुरू नहीं किया बैटरी तो सराउंडिंग टेम्परेचर पे था ना, जीरो टेम्परेचर पे नहीं था। हेलो, अरे मेरा बच्चा, दिस इज विच टेम्परेचर? around तो टाइम्स जीरो पर ये कौन से टेम्परेचर पे था कंडक्टर? around थोड़ी था। Yes, sir. अरे कोई भी आपके घर में कुर्सी हो, टेबल हो, कौन से टेम्परेचर पे होता है? जीरो पे थोड़ी होता है। अब ये क्या हो गया? अब तो यही हो गया ना जो मैंने कहा था आपसे, क्या हो गया भाई? वही है, ये क्या बताया था मैंने आपको, dx so अपॉन t small a t minus will be bx, equal to एक मिनट, x नॉट टू x will become c dt। एक मिनट, हाँ, सब एबीसी पहचानना पड़ेगा सबसे पहले एबीसी पहचानो। a कितना है? v square by r a is v square by r, एकदम ध्यान से। हाँ, b so कितना है? one sec हाँ, so we want t capital T correct
हाँ तो a माइनस bx है ना, वो जो इंटीग्रेशन है a माइनस bx होगा। हाँ तो करेक्ट है ना, क्या हुआ k इसमें k प्रॉब्लम? t नॉट विल बी कांस्टेंट ना बट t इज चेंजिंग ना। सर, कैपिटल T इज चेंजिंग, t नॉट कहाँ हाँ चेंज होगा t नॉट नहीं चेंज हो रहा है तो सर? सो a विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r प्लस k t नॉट ना। एक मिनट, कौन सा वेरिएबल है? सर देखो, v स्क्वायर बाय r इज कांस्टेंट, करेक्ट? v स्क्वायर बाय r प्लस के टी नॉट, बराबर है हाँ आपकी बात। हाँ तो ये थोड़ा है ना, थोड़ा रब करना पड़ेगा। यस करेक्ट, इसको थोड़ा बराबर से मैनिपुलेट करता है। फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग इसको। चलो अभी फिर से लिखो इसको एक बार, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स को साथ में लाना पड़ेगा। चलो यार सूजल, आर यू देयर? क्या हो गया? चलो मुझे बताओ, क्या कांस्टेंट है? वी स्क्वायर बाय आर प्लस के टी नॉट माइनस के टी। ये ए बन गया ना पूरा। हेलो हेलो क्या सर? यार तुम लोग क्या सब सब चैंपियन लोग हैं मैथमेटिक्स के, मुझे सिखा सकते हो यार, तुम लोग ऐसे मत करो। चलो फटाफट बताओ, ए कितना है, बी कितना है? k k हम्म k के है। एंड सी कितना है? सी हाँ okay. सी इज 1/c। हेलो यार व्हाट इज हैपनिंग? यस सी इज सर। 1/c, सी इज 1/c। अब वैल्यू डालना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या था? कैपिटल T इक्वल टू x was a by b minus x naught e e raised raised to to minus b minus ct। bct। यस सर। x की जगह कौन आएगा? कैपिटल T कैपिटल T। a by b v स्क्वायर बाय r प्लस k t नॉट बाय k। by b, b कितना है? k है। ये हो गया माइनस, फिर से ये माइनस एक्स नॉट। हु इज माइनस एक्स t नॉट? नॉट माइनस टी नॉट e raised to minus b c। c is 1/c। 1 by 1 by c। c. हो गया आंसर, खत्म। सर t हेलो will be capital T ना, k small t। can simplify टाइम it है, for, वो टाइम है। हेलो अच्छा ओके। so you can simplify it further now. हाँ यू कैन डू इट, वो सब कर लो तो आंसर है। So t will get cut. 2 टाइम्स हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? So it will, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e रेस टू माइनस आप साथ में ले लो एंड t यू। नॉट t नॉट so t naught and t naught will get cancelled in the e raised हाँ to minus का bracket, and ओके b square by r k in calculation and इसको t. एलसीएम ले लो, फिर कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? हेलो Yes. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ईएमआई में काम लगेगा। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 273। और अभी तो बहुत सारे सम्स करने हैं एडवांस में ईएमआई के, तो आपको समझ जाएगा, ये रोज यूज होगा ऐसे, ये दोनों इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं। ओके यस सर। तो थैंक यू वेरी मच, वी हैव कंप्लीटेड विद करंट, कांग्रेट्स। हाँ नाउ सैटरडे को वील स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैट्स। मजा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स इजी है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद में कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के बाद में ईएमआई, और फिर हम लोग बाकी के जो फ्लूइड लाइट वाइट बाकी है वो सब करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू। so now current electricity test है Wednesday को। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट ऑन वेडनेसडे एंड ठीक है, बाकी तो टाइम टेबल तो भेज दिया ना मैंने। वीकेंड को आपने रखा है सेमीकंडक्टर्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी मेंस का। ये वीक नहीं है, ये वीक नहीं है, सेमीकंडक्टर खाली है ना ये वीक में। तो हाँ ओ सॉरी या खाली सेमीकंडक्टर दो ना, टाइम पास सर ने करा दिया ना डीसी पांडे तो। या Yes, अब sir. फिर क्या टेंशन है यार, आप लोग को करते या रहो। चलो थैंक यू, बाय सर। Bye. थैंक यू।